اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع بھی انتہائی اہم ہے۔ آج میں بتاؤں گا کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نیا وزیر اعلیٰ کا نہ صرف نام سامنے آ گیا ہے بلکہ اس نے اپنی پاور بھی شو کر دی ہے۔ کتنے ارکان اس کی پاور شو میں شریک ہوئے پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد کے پی کے میں البدر آپریشن البدر کے نام سے آپریشن شروع کیا گیا ہے دہشت گردوں کے خلاف، اور بلوچستان میں جو جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا تھا اس میں جو دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، جو مارے گئے، ان سے کیا کیا کچھ برآمد ہوا ہے اور کتنی زیادہ معلومات ملی ہیں جو ان سے موبائل فون برآمد ہوئے تھے، اس پہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ کیا کیا نقشے ان سے برآمد ہوئے، کیا کیا چیزیں برآمد ہوئی ہیں، پوری تفصیل بتاؤں گا مختصر سے وقت میں۔ آپ سب سے اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ بتانے والوں کو، حق سچ سننے والوں کا چینل ہے۔ یہ وہ چینل ہے کہ جو آپ کو اگر اتنا سا سچ ہو تو اتنا ہی بتاتا ہے، اس میں جھوٹ شامل کر کے مرچ مسالہ لگا کے اتنا نہیں کرتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، میں نہیں کہتا ہوں مجھے ہی سنا کریں، جس کو بھی سنیں اس کو سنا کریں کہ جس کی باتیں آگے جا کے سچ ثابت ہوں، جس کی باتیں آگے جا کے جھوٹ ثابت ہوں، یا جو آپ لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہو ملک کے خلاف، فوج کے خلاف، خدا را وہ بندہ غدار ہوتا ہے، وہ عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہوتا ہے، وہ ڈالر لے کے آپ لوگوں کا ذہن تبدیل کر رہا ہوتا ہے، یہ قوم یوتھڑ کا ذہن تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں۔ یہ عمران ریاض ہو گیا، عادل راجہ ہو گیا، مہدی ہو گیا، یا یہ ارشاد پٹی ہو گیا، یا یہ کیا نام ہے ٹاؤٹ جتنے بھی میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ لبادہ اڑے ہوئے عمران ریاض جیسے غدار وطن۔ یہ کل تک عمران ریاض کیا تھا؟ اس کا باپ ایک سکول کی کینٹین میں پاپڑ بیچا کرتا تھا، تو آج وہ کھربوں کی جائیداد کا، فیکٹریوں کا، کارخانوں کا مالک کیسے بن گیا؟ یہ ٹاؤٹ ہیں، یہ ایجنٹ ہیں عالمی طاقتوں کے۔ اسی طرح عدلیہ کے اندر جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ٹاؤٹ ہیں عالمی طاقتوں کے، وہ بھی ڈالر لے کے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو جج ہے نا، جو آج کل بہت زیادہ جس کو کیڑا اچھل رہا ہے نا، اس کو اگر نہ اپنے انجام تک پہنچایا گیا تو اس نے بہت نقصان کرنا ہے۔ اس لیے میری کوشش ہے کہ تفصیل سے بتاؤں گا اس پہ بھی، کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، گھنٹی کے نشان کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ گروپوں میں ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ لے لیتے ہیں جناب، جو دہشت گرد مارے گئے ان سے کیا برآمد ہوا ہے، یا یہ آخر میں بتاؤں گا، پھر آپ لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے ہو، ویڈیو پوری نہیں دیکھتے ہو، کیا کروں جو مجبوری ہے۔ آخر میں بھی نہیں، کہیں درمیان میں بتا دوں گا۔ اگر آخر کا بتاتا ہوں نا تو آپ لوگ سکپ کر کے فوراً اینڈ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب میں بھی تھوڑا سا ہوشیار ہو گیا ہوں، بابا ضرور ہوں لیکن اتنا ماٹھا بابا نہیں ہوں۔ دنیا کے ساتھ چل رہا ہوں، دنیا کو سمجھتا ہوں، دنیا دیکھی ہوئی ہے۔ یہ بال ایسے ہی دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، تو
बहरहाल ये जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे लिए एक फैमिली की मानंद है। इनके साथ मैं लड़ झगड़ भी लेता हूँ। इनकी बातें, हाँ, जो मुझे अच्छी बातें बताते हैं कि इस तरीके से किया करें, व्लॉग को कम वक्त में किया करें, तो देखें मैंने 1 घंटे से अब कितने पे कर दिया है, 15 से 20 मिनट पे। मैं अच्छी बात पे अमल ज़रूर करता हूँ, और पूरे जितने भी मैसेज आए हुए होते हैं ना, मैं एक एक मैसेज को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, उस पढ़ने के बाद उसका जवाब भी देता हूँ। तो कोशिश किया करें कि लाइक भी कर दिया करें और कमेंट्स भी कर दिया करें, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, चाहे उसमें हिदायत दें, चाहे उसमें बेहतर मशवरा दें। मशवरा, क्योंकि ये एक समुंदर है, सहाफत जो है ना एक समुंदर है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अब ज़्यादा उम्र का हो गया हूँ तो मैं बहुत बड़ा, नहीं, मैं अभी भी शागिर्द हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो बाकी जो है ना, अब देखे जनाब के ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ है ना, रद्दल फिसाद, इसमें ये जो पहले इन कैमरा जो अजलास हुआ है कौमी असम्बली का, और मुश्तरका अजलास सेनेट का और कौमी असम्बली का, इसमें तमाम मुल्क की छोटी से छोटी जमात से लेके बड़ी से बड़ी जमात, तमाम जमातों ने शिरकत की। किस लिए? अपने मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपनी अफवाज से अज़ारे यकजहती करने के लिए, उनको इख्तियारात देने के लिए, उनको फंड्स वगैरह देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। एक पार्टी शरीक नहीं हुई है। कौन सी पार्टी? PTI शरीक नहीं हुई है, बल्कि इमरान खान ने खुल के उनकी हिमायत, दहशत गर्दों की हिमायत की है, और जो फौज है उसकी मुखालफत की है कि फौज उनके साथ जुल्म कर रही है। अभी भी अगर कौम यूथड़ ना समझे तो फिर इनके दिमागों पे मैं कुछ नहीं कहता हूँ, रोजा है, बस अल्लाह हिदायत दे, बस यही कह सकता हूँ। नहीं तो बड़ा एक जबरदस्त फिक्रा आया था, बहरहाल रोजे के एहतराम में उसको मैंने मनसूख कर दिया। तो इस जमात ने उस वक्त भी कौमी असम्बली में इसराइल की मुखालफत में वोट नहीं दिया था, उसकी हमायत में वोट दिया था, इसराइल की हिमायत की थी। जब गजा के सिलसिले में इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश की गई, तो उसमें PTI के तमाम अरकान ने वोट में हिस्सा नहीं लिया था, और फ़लस्तीनियों के हक में वोट नहीं दिया था, बल्कि इसराइल की हिमायत की थी। इससे आप अंदाज़ा कर लेना कि इनको इमरान खान कैसी कैसी हिदायत देता है, क्योंकि इमरान खान इसराइल का दामाद है, तो जाहिर है एक दामाद अपने ससुराल वालों का ख्याल रखेगा ना, जहां से उसको खरबों रुपया आता है वो उनका ख्याल रखेगा ना। और ये तो कंगला था, ये तो ज़कात सदका खैरात खाने वाला था। ये जो यूथड़ कौम कहती है ना, शुरू से खरबपति था, नहीं था। इससे ज्यादा सीनियर थे ज़हीर अब्बास और जावेद मियांदाद, और उन्होंने इससे ज्यादा पैसा कमाया। ये रिटायर्ड हो गया था, वो बाद में भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, वो भी कप्तान बने हैं दोनों। ज़हीर अब्बास भी कप्तान बना है और जावेद मियांदाद भी कप्तान बना है। और उनके पास इतना पैसा क्यों नहीं है? उनके पास इतना बड़ा घर क्यों नहीं है? उनके पास खरबों रुपया क्यों नहीं है? ये गद्दार वतन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हकीम सईद ने 40 साल पहले बता दिया था, जबकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट के तौर पे पढ़ रहा था। उस वक्त हकीम सईद ने बता दिया था। तो हकीम सईद को इससे क्या दुश्मनी थी? उसकी तो औलाद ही नहीं थी। उसका जो कुछ हमदर्द दवाखाना, हमदर्द फाउंडेशन, ये रूह अफ़ज़ा की फैक्ट्रियां, जो कुछ भी था, वो सब का सब उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया था। अब आप हमदर्द की कोई भी मेडिसिन खरीदें या कोई भी अदारे में जाके देखें, वहां लिखा होगा वक्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उसको क्या दुश्मनी थी? डॉक्टर इसरार चोटी का आलम, फाजल, हदीसों का बयान करने वाला, कुरान पाक लिखने वाला, हदीसें लिखने वाला, उसको क्या दुश्मनी थी? उसने भी 25 साल पहले बता दिया था। अभी ये हुकूमत में नहीं आया था, सियासी जमात बना चुका था, तो उसने भी बता दिया था कि ये आलमी ताकतों का, यहूदियों का एजेंट है।
उसको क्या दुश्मनी थी इसके साथ। तो अब देखें, जो लोग वहां से केपीके में अफगानिस्तान से आते हैं, चलें पहले इन पे बाद में बात, अच्छा चलें पहले इसी बात को ही पूरा कर लेता हूँ कि अफगानिस्तान से आते हैं, आके यहाँ पे हमलावर हो जाते हैं, लेकिन असला देते हैं, वो जो बाहर से आते हैं वो असला दे के निकल जाते हैं। कई हजारों खुफिया रास्ते हैं जो कोई फौज को भी नहीं पता है, लेकिन अफगानियों को पता होते हैं, या ये जो स्मगलर होते हैं ना, इनको पता होते हैं। इनके जमीन दोज रास्ते ऐसे होते हैं ना, जो बॉर्डर के नीचे से ही गुजर के तो जाके उनकी हवेलियों के अंदर से बाहर निकलते हैं। बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं ऐसे, कहाँ कितने पकड़ेंगे, लाखों की तादाद में, नहीं पकड़ सकते। ये बॉर्डर पे नामुमकिन है निगरानी रखना। कौम यूसड़ कहती है ना, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, ये तुम्हारे बाप दादा बॉर्डर क्रॉस करते ही नहीं है, ये सुरंगों के जरिए पहुंच जाते हैं असले समेत, और यहाँ पे वो कार्रवाई करते हैं, आगे सपोर्ट उनको मिलती है वहाँ की केपीके की हुकूमत की तरफ से। इसमें पूरी तरह गंडापुर मुलव्वस है, उसकी हुकूमत मुलव्वस है, पीटीआई पूरी तरह मुलव्वस है। ये गद्दार वतन लोग हैं, गद्दारों का टोला है। ये उन लोगों को सपोर्ट करते हैं कि इमरान खान समेत उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं कि जो मस्जिदों पे हमलावर होते हैं, मासूम लोगों को शनाख्ती कार्ड देख के नीचे उतार के तो शहीद कर देते हैं। ये उन लोगों की, उन दहशत गर्दों की हिमायत कर रहे हैं। तो अब आप अंदाजा कर लेना कि ये पार्टी किस लेवल की दहशत गर्द पार्टी है। इस पे पाबंदी, मेरी आज की बात नोट कर लें, लिख लें, इस पे अनकरीब पाबंदी लगने वाली है। ये फिर कौम यूथड़ जो है ना, वो फिर मुजरा किया करेगी। अच्छा, एक मैं आप लोगों को आज एक और मजे की बात बता दूं, ये कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कि पीटीआई की एक अहम रहनुमा लेडीज है, उसका नाम उस मरदूद औरत का मुझे नहीं आता, उस जहन्नमी औरत का, वो कह रही है कि मरियम नवाज ने जो स्कूलों में डांस पार्टियों पे पाबंदी लगाई है, मैं इसको पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही हूं। इस पे ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और बगैर तो अब भी समझ जाओ, ये आप लोगों की माँ बेटियों को नचाने वाली पार्टी है। तुम लोगों में तो खैर गैरत नाम की कोई चीज आई नहीं, तुम लोग तो अपनी बीवियां बेटियां खुद जाके पेश करने वाले लोग हो, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए, क्योंकि जिनका ईमान ही डॉलर हो तो उनसे क्या अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग हैं कि जो मैंने अंदाजा किया कि जिनका ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान से और जिनका ताल्लुक है आजाद कश्मीर के साथ, वो भी खुल के मुखालफत कर रहे हैं फौज की और पाकिस्तान की। उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये वो कश्मीरी, बस रोजा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, ये वो नस्ल है ना जो अपनी बाप की भी नहीं बनी है। ये सुबह उठ के ना, ये जितने भी लोग दलाल किस्म के बेगैरत लोग हैं ना, सब कश्मीरियों को नहीं कह रहा हूं, ये जो पीटीआई के साथ है या जो मुल्क के और फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं ना, उन बेगैरत दलालों को मैं इतना कहूंगा कि सुबह उठ के रोड के किनारे खड़े हो जाए करें, देखा करें कि पाकिस्तान से जो बसें जा रही हैं ना या ट्रक जा रहे हैं, उनमें छत तक लोड होती हैं बसें और ट्रक, सब्जी यहां से जाती है, फल फ्रूट यहां से जाता है, गंदम यहां से जाती है, और दुनिया की चीज यहां से जाती है। तुम लोगों को उन पहाड़ों में क्या है, भूखे मरोगे। अगर आज पाकिस्तान अलग हो जाए तो हमें तो फायदा हो जाएगा, हमारी फौज तुम लोगों की खातर वहां जाके बैठी हुई है, अखराजात हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, आप लोगों की हुकूमत अपनी है वहां पे, और फौज जो है ना वो यहाँ की जाके अखराजात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हो रहे हैं, हिफाजत तुम लोगों की कर रही है, तुम लोगों के खातर वो अपनी जानें पेश कर रहे हैं, और तुम लोग वो दलाल हो जो अपनी माँ बहनों का सौदा करने वाले दलाल हो। तुम लोग उसी फौज के खिलाफ कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। शर्म और गैरत नाम की कोई चीज तुम में होती ना, कि तुम असल बाप के होते, तुम तो असल बाप के ही नहीं हो।
जितनी याशी जितनी बेगैरती कश्मीर में है ना, पूरी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह का अजाब आया था, जलजला आया था, तुम लोगों को जन्नत वासल किया गया था अल्लाह ने, कि तुम लोग ना भाभीियों को छोड़ते हो, ना बेटियों को छोड़ते हो, ना कजनों को छोड़ते हो। इतने बेगैरत किस्म के तुम लोग हो। सबको नहीं कह रहा हूं, जो इस तरह की बेगैरतियों में मुलव्वस है उनको कह रहा हूं, और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मेरा बहुत ज्यादा कश्मीर आना जाना लगा रहता है। मैं जितना अंदर से इन लोगों को जानता हूं ना, ये गलीज लोग हैं, गंदे जैन, गंदी जैनियत, गंदी औकात, गंदा, ना बाप का पता, ना माँ का पता, ना इज्जत, ना एहतराम, ना बुजुर्गों की इज्जत एहतराम। ये वो नस्ल है, बिगड़ी हुई नस्ल है। अपने आप को कहते हैं जी हम नौजवान नस्ल है। लानत है तुम्हारी नौजवानी पे, ऐसे गलीज गंदे जहन के लोग हो। तो अहम ओहदों पे कश्मीरी बैठे हुए हैं, फौज में अहम ओहदों, अतः के जनरल तक के, इनके जनरल अजीज कौन था? कश्मीरी था ना। जनरल रैंक तक वो 3 स्टार जनरल रिटायर्ड हुआ है। अहम ओहदों पे तुम लोग बैठे हुए कब्जा करके। तुम लोग अगर यहां से दफा हो जाओ ना, तो हमें तो बहुत सारी सहूलतें मिल जाएंगी, बहुत सारे अखराजात बच जाएंगे। और पहले आजाद तो हो जाओ, वो उसको जम्मू कश्मीर को तो आजाद करा लो। तुम लोग तो वो बेगैरत हो कि वो वहां पे इससे लूटी जा रही हैं, उस पर कभी इंडिया के खिलाफ तो भोंके नहीं हो, अपनी फौज के खिलाफ भोंक रहे हो। कुत्तों से बदतर हो तुम लोग। तो अब देखें इन लोगों का जो अंजाम होगा ना, वो बदतर होगा। पीका एक्ट पे जरदारी ने, सदर ममलकत ने दस्तखत कर दिए हैं। पीका एक्ट अब कानून बन चुका है। इनको नस्लें भी याद रखेगी कि क्या होगा। उसमें कम से कम सजा उम्र कैद है, और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत है। ये बहुत देर से आया है, इंडिया में बहुत पहले से मौजूद है ये कानून। यहाँ पे देर से आया, पूरी दुनिया में कानून मौजूद है। फौज के खिलाफ भौंकने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। तो इनको जन्म वासल जितनी जल्दी कर दिया जाएगा ना इन गद्दारों को, उतना ही बेहतर है। तो अब आप आ जाएं जनाब के केपीके में गंडापुर की हुकूमत खत्म की जा रही है। ये मेरी बात लिख लें कि हफ्ता 10 दिन, ये ईद के फौरन बाद ये काम हो जाएगा। गंडापुर को हटा दिया जाएगा, नया वज़ीर आला आ जाएगा। उसने एक अहम इजलास भी बुलाया जिसमें 25 लोगों ने शिरकत की है, और उसको अपनी हमायत का यकीन दिलाया। तो बाकी जो है ना, इंशाल्लाह ये अनकरीब इस गद्दार वतन से जान छूट जाएगी। जो नया आएगा वो फौज के मातहत होगा, वो इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा। ये गंडापुर से लाख दर्जे बेहतर होगा। इससे हुकूमत नहीं चल रही है, करप्शन में दब के लगा हुआ है। और जब भी कोई मसला आता है ना, फौज के खिलाफ हो जाता है, फौज पे भोंकना शुरू कर देता है, गवर्नमेंट पे भोंकना, रियासत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देता है। इसी थाली में खा रहा है, उसी थाली में छेद कर रहा है। ये सब अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं इंशाअल्लाह। मेरी बात आज की लिख के रख लें, ये सब के सब गद्दार अपने अपने अंजाम को पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। तो अब आप देख लें किस तरीके से। हाँ, अब आप आ जाएं जनाब के, अब केपीके में सबसे ज्यादा ऑपरेशन तेजी के साथ हो रहा है। अलबदर के नाम से ना, वहां पे जन्म वासल किया जा रहा है उनको। और इसमें यह फैसला हुआ है कि जो लोग मीडिया पे कर रहे हैं ना, दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू हो गया है। उनको इंटरपोल के जरिए वापस ला के निशाने इबरत बनाया जाएगा। उनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि वो फौज के खिलाफ किस तरीके से भौंक रहे थे। चाहे उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं, उनके पासपोर्ट कैंसिल किए जा रहे हैं, उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैंसिल किए जा रहे हैं। जब डोमिसाइल नहीं होगा, शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, पासपोर्ट नहीं होगा, तो वहां पे जो बैठे हुए हैं ना बाहर ममालिक में, उनको फिर इंटरपोल के जरिए फिर वापस लाया जाएगा। तो वापस ला के
यहाँ पे उनको निशान इबरत बनाया जाएगा। तो अब बाहर वाले यूथड़ भी होशियार हो जाएं और यहाँ पे भी उनकी जायदादें जब्त होंगी। ये ना वो सोचें कि यहाँ पे आके कारोबार करेंगे, उनकी पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी या उनको लटका जन्म वासल कर दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे उनकी जायदादें भी जब्त हो जाएंगी। उसके बाद फिर केपीके में इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ अमन आता जा रहा है, अमन आएगा। और ये जो इमरान खान और जनरल फैज हमीद ने मिल के आलमी ताकतों को कहने पे डॉलर वसूल करके दोनों ने ये 50,000 उस वक्त ये दहशत गर्द ला के केपीके में जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान और तमाम कुरम एजेंसी समेत तमाम एजेंसियों में बसाए, स्वात में बसाए, कुवाट में बसाए। ये वही दहशत गर्द अंदर के धमाके कर रहे हैं, बसों को उड़ा रहे हैं, मस्जिदों पे हमलावर हुए हैं, नमाज की हालत में लोगों को शहीद कर रहे हैं। और उसके बाद फिर देखें किस तरीके से ये अब आप आ जाएं जाफर एक्सप्रेस में जो लोग मारे गए थे उनसे जो उनके मोबाइल फोन सैटेलाइट पे जो चल रहे थे वो बरामद हुए थे। उनको जब कोड अनलॉक किए गए तो उसके अंदर से जो मवाद मिला है ना, बस अल्लाह माफ़ी दे। ऐसे ऐसे उसमें मंसूबे हैं कि मतलब मुल्क की तबाही थी। BLA का उसमें अहम लीडर भी मारा, सरबरा भी मारा गया, जन्म वासल हो गया। और TTP के अहम लोग भी उसमें जन्म वासल हुए हैं। और फिर वो जो एक और थी, क्या नाम था उसका, इन मरदूदों के एक तो नाम भी जहन से निकल जाते हैं क्योंकि मैं तो जुबानी भी लाग कर रहा होता हूँ, तो उसके भी लोग जन्म वासल हुए हैं। ये 36 के करीब ये लोग थे, ये जो जन्म वासल हुए हैं। इनसे बहुत से नक्शे मिले हैं, बहुत से मवाद मिले हैं, बहुत सारी ये इनके मोबाइल से मालूमात मिली हैं, सैटेलाइट मोबाइल थे इनके पास। और बाकी जो है ना, इंशाल्लाह अब तेज़ी के साथ बलूचिस्तान में भी माहम बलोच जैसी गद्दार को, और वहाँ पे अच्छा KPK में, और वहाँ पे अगर गवर्नर जो नया जो वज़ीर आला आएगा ना KPK का, अगर ये सही तरीके से चला तो चलता रहेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे भी गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। और बलूचिस्तान में भी गवर्नर राज लग रहा है, मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का एक वज़ीर आला को छोड़ के ना तो बाकी सब के सब जितने भी हैं ना वो उनसे डरते हैं और उनके साथ मिले हुए हैं, BLA वालों के साथ मिले हुए हैं, ये माहम बलोच के साथ मिले हुए हैं। ये माहम बलोच जितनी गद्दार औरत अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुई है, ये इतनी बड़ी गद्दार है। और ये बलोच सरदार जो है ना, ये सब के सब बिकाउट आउट है। ये जो पहाड़ों पे बैठे हुए हैं ना या दुबई जाके छुपे हुए हैं ना, ये खरबों रुपया, खरबों डॉलर वसूल करके बैठे हुए हैं। और ये आप मुल्क में दहशत गर्दी फैला रहे हैं, मुल्क के अवाम को आपस में फौज के खिलाफ कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अब जो मीडिया पे आएगा उस पे भी दहशत गर्दी का पर्चा चलेगा, केस चलेगा, और वो भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। वो उसकी भी कौम यूथड़ गौर से सुन लो, ये इस्लामाबाद से जो 2 पकड़े गए ना मरदूद, अब उनकी उनके माँ बाप पे भी लानत है, उनके वाइफ पे भी लानत है। ये वो गद्दार लोग हैं जो पैसों के लिए अपनी माँ का भी सौदा कर दें, ये वो थे। ये एक का नाम हैदर है और दूसरे का नाम मेरे जहन से निकल गया अभी, नाम देखे कितना अच्छा, और करतूत देखें कैसे। अल्लाह हिदायत दे, वरना इनको अल्लाह नेस्त और नाबूद करे, आमीन। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आखिर में दुआ करते हैं 1 मिनट के लिए कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस मुल्क को क़यामत तक कायम रखे। हाफ़िज़ सैयद आसम मनीर और उनकी फैमिली की हिफाजत फरमाए, अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हाफ़िज़ सैयद आसम मनीर के जो वफादार साथी हैं उनकी हिफाजत फरमाए, जो अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों के गद्दार छुपे बैठे हैं, अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनको
ان کی فیملیوں سمیت جنم واصل کرے، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنائے، اور افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے۔ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں سب کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے، جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان سب کی قرض کی ادائیگی میں اللہ غیب سے مدد فرمائے، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے غیب سے مدد فرمائے، ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرمائے، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرمائے، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرمائے، اور جن لوگوں کے بجلی گیس کے بل بہت زیادہ آئے ہیں اللہ ان کے وسائل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو اپنے ماں باپ کا وفادار بنائے، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن بچوں اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے، جلد سے جلد ان کی شادیوں کے وسائل پیدا فرمائے، اچھے لوگوں میں نیک لوگوں میں رشتے کروائے، شادیاں کروائے، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ ہماری تمام عبادات قبول فرمائے، روزے قبول فرمائے، حج قبول فرمائے، عمرے قبول فرمائے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔